We'll start with the last chapter, waste water story. Clean water जो है ना, that is a basic requirement. Clean water जो है, that is the very basic requirement of our life. हम लोग clean water use करते हैं. We use clean water every day for drinking purposes, for bathing, for washing clothes, for cooking food, for utensils, washing utensils, flushing in toilets. Yes, we are using water for flushing in toilets also. Very surprising, isn't it? Okay, beta. So when we use water for various purposes, हम लोग water को करते हैं dirty. Dirty means, yes, it is that water which is mixed with oil that is black brown in color. उसमें बहुत सारा झाग है, lather है, and is mixed with dirt, grease, and which is coming down from the sink of your kitchen, or maybe your washing machine, or maybe your bathroom shower, or a bathtub, or even down the drain. जितना भी हम water हम waste कर रहे हैं, that is all dirty water. That is all dirty water. All right, so all this used water, जितना भी हमने अभी तक list किया है, वो सारा का सारा water जो है, that is called as waste water. जितना भी हमारे घर से अलग अलग sources से जो गंदा पानी आ रहा है, उसको हम कहते हैं waste water. ये सारा used water है, ठीक है? When we flush the toilet, तो जो हमारी body waste है, urine and feces, that go down the drain with the water. So this water becomes filthy, which comes out from toilet and goes into the drain. That is also dirty water. So waste water जो है, you have to remember कि waste water जो है, that may also contain feces. Feces मतलब FAECES. Feces means human excreta, हमारा human body waste. So this we can conclude कि in everyday life we convert clean water into dirty water or waste water. Yes, हम लोग रोज के अपने daily routine में, अब आप you have to be very thoughtful about it कि हम अपनी daily routine में जितना भी clean water था, उसको हमने waste water में convert कर दिया, right? This is very essential to keep cleanliness and remain healthy. ये तो जरूरी है हमारे लिए, है ना? We have already studied in lower classes also कि there is, and we hear also from TV and other sources कि there is severe shortage of fresh water due to increasing population, pollution, industrial development, mismanagement, and various other factors. ठीक है ना? लेकिन that means the used water should not be wasted. आप बोलेंगे अब जब हमने waste ही कर दिया, जो हमारे टॉयलेट से आ रहा है, जो हमारे कपड़े धोने के बाद आ रहा है, जो हमारे यूटेंसिल्स धोने के बाद आ रहा है, ये वाटर जो है, जब हमने वेस्ट ही कर दिया उसे, जब हमने उसको डर्टी कर दिया है, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे? लेकिन यूज्ड वाटर और वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज्ड आफ्टर क्लीनिंग इट. So we must clean the used water by removing the waste of the impurities, harmful pollutants from it, and before it is reused or released into the environment, जैसे कि lakes में, rivers में, ground में, तो हमें इसको पहले clean करना चाहिए. और इस process को, cleaning of water is the process of removing the pollutants या फिर harmful substances from that waste water or dirty water. We'll be studying about how to clean this wastewater in detail later in this chapter. But you must remember that we have to keep the supply of water regular in the coming years also. We need to clean this water. We need to use this water again. If not for drinking purposes, for all the other purposes. अगर आप realize करेंगे इस water की importance, we'll be studying in chapter water also. Otherwise also, for your information, a very, very small amount of
पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर मतलब वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग is left on this earth. Most of the water which is fit for drinking is very soon going to deplete. बहुत जल्दी कम होता जा रहा है because of कितने सारे फैक्टर्स है, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये सारी चीजों के कारण हम लोग सब जगह कहाँ यूज, कौन सा वाटर यूज करें? वी आर यूजिंग फ्रेश वाटर, जो कि हम लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करेंगे. जो हमारी बेसिक नीड है वो वाला वाटर हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? हमारे घर में पानी कहाँ से आ रहा है? ओवरहेड टैंक से आ रहा है. यस, यस और नो? तो ये ओवरहेड टैंक से जो पानी आ रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है? हमारे किचन के, आप रियलाइज कीजिए, घर में बैठे हुए हमारा वही पानी जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है उसको हम पीने के लिए भी यूज कर रहे हैं. जब हमारे किचन में आ रहा है वो थ्रू द फिल्टर, यस, वही पानी जो है इट इज गोइंग इनटू द अदर टैप फॉर क्लीनिंग योर यूटेंसिल्स, दैट इज गोइंग इनटू द वॉशरूम फॉर फ्लशिंग इट. वो पानी जो हम ओवरहेड टैंक से ले रहे हैं उसको हम पी भी रहे हैं, वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है. उसको हमने कहाँ यूज कर दिया? इनटू द फ्लश, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर गार्डनिंग. हम वही पानी गार्डनिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं. आप रियलाइज करते हो कि हम क्लीन वाटर कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ फिट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, उसे हम फ्लश में भी यूज कर रहे हैं. फ्लश में तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी आर नॉट टचिंग दैट वाटर एट ऑल which we are flushing it down our toilets, right? But the need of the hour is to reuse this water, dirty water, especially the ones which is coming from the laundry, especially the one which is coming from after use washing the utensils, the rain water which is coming down from the rooftop and going waste, it is getting mixed into the waste water, dirty water में mix हो रहा है. जबकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेन वाटर इज द वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, है ना? तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि वी शुड नो एंड वी शुड अडॉप्ट मेथड्स टू यूटिलाइज दिस रेन वाटर विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. तो ये जितना भी पानी हमारे घर से निकल कर सीवेज में जा रहा है वो सारा का सारा वेस्ट वाटर है, डर्टी वाटर है. बट the need of the hour is to reuse it, to waste water जो dirty water है उसको clean करके मतलब उसमें से impurities निकाल कर, pollutants निकाल कर उसको वापस हमारे घरों में recycle किया जाए, so that it can be used for different purposes if not for drinking purposes. समझ आ रही बात? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, आने वाले कुछ सालों में even the sewage water को purify किया जाएगा for even drinking purposes when the water for shortage will be there. ठीक है? लेकिन बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में they are very much aware and उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि उनके घरों में जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, किचन पर्पसेस के लिए अलग वाटर आता है, एंड फॉर लॉन्ड्री एंड फॉर टॉयलेट्स द वाटर विच they get is a different one, that is the recycled one. And this is what is needed in our country also, especially in our country because we have a huge population to support. Huge means it's such a huge one, and the need for basic need, कुछ लोगों वेस्टेज इतनी करते हैं वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की इतनी वेस्टेज है, और कुछ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलता भी नहीं. They do not get even, they are not even having access to drinking water. So there has to be some balance. We need to be very careful while wasting the water. All right. So the need is that. So we'll be studying in this chapter how this waste water is being cleaned, how it can be cleaned, and how, what are the first thing, what is all which is present in the waste water? What is all which is present in the waste water? All right. So next thing is कि ये जो वेस्ट वाटर है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कहाँ से आ रहा है. इट इज कमिंग फ्रॉम होम्स, इट इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इट इज कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल्स, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑफिसेज, it is coming from all the other users,
दैट इज कॉल्ड एज सीवेज। इसको क्या कहते हैं हम? सीवेज। जो हमारे घरों से पानी डिफरेंट डिफरेंट पाइप से निकल कर जा रहा है, इसको हम कहते हैं सीवेज। तो सीवेज जो है ये हाउस होल्ड वाटर भी हो सकता है, जो कि किचन सिंक, वॉशिंग मशीन, वॉश बेसिन, बाथरूम शावर्स, बाथ टब, फीसेस फ्रॉम टॉयलेट, ये सारी चीजें उसमें एडेड हैं। इन एडिशन जो सीवेज है दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय शॉप्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड ऑल द अदर प्लेसेस जहां पर भी ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं, रहते हैं, दे आर ऑल रिलीजिंग दिस वेस्ट वाटर, जिसको हम कहते हैं सीवेज। सीवेज में रेन वाटर भी होता है, यू मस्ट रिमेम्बर। जैसी बारिश होती है तो हमारी जो रूफ टॉप्स है उसके ऊपर से नीचे आता है पानी थ्रू पाइप्स, रोड के ऊपर जो चला जाता है पानी, स्ट्रीट्स में जो पानी होता है, ये सारा का सारा बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस अपने साथ लेके जा रहा है एंड इट फ्लोज इनटू कहाँ जाता है? आपने देखा होगा हमारे रोड्स के ऊपर ड्रेन्स होते हैं जिनके अंदर होल्स होते हैं, वो उसके अंदर चला जाता है, राइट? सो समटाइम्स जो सीवेज होता है इट कंटेन्स वेरी हार्मफुल एंड पॉइजनस केमिकल्स जो कि डिस्चार्ज होते हैं बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। सीवेज जो है ना एक लिक्विड वेस्ट है, ज्यादातर जो है सीवेज में इट्स डर्टी वाटर। क्या होता है डर्टी वाटर में? जिसके अंदर डिस्टॉल्ड इम्प्यूरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती हैं। इम्प्यूरिटीज मतलब उनको हम नाम देते हैं कंटैमिनेंट्स, ठीक है? तो इसका मतलब जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे अबाउट वेस्ट वाटर, whenever we'll talk about waste water we will talk about sewage। अब सीवेज की कॉम्पोजिशन क्या है? सीवेज की कॉम्पोजिशन वैसे भी अगर आपने अपने घरों के आसपास, हम लोग बाहर निकलते हैं तो अगर कहीं आपने ओपन ड्रेन देख लिया, बहुत कॉमन साइट है हमारे यहाँ पर ओपन ड्रेन, मतलब ड्रेन जो खुला हुआ है उसका ढक्कन हटा हुआ है, तो आपने रोड साइड पे भी देखा होगा, कहीं पर आपने वाटर विच इज ओवरफ्लो हो रहा होता है ड्रेन से बाहर, स्पेशली इन द रेनी सीजन, तो आपने देखा होगा। और आप वहां पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? वहां पर आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि आप अपना नोज कवर कर लेते हैं। क्यों नोज कवर करते हैं? बिकॉज वहां से हमें गंदी स्मेल आ रही होती है। यस और नो? पुट योर डिजिटल थम्स अप इफ यू हैव नोटिस्ड वंस और वाइल। कभी ना कभी आपने जरूर नोट किया होगा, इफ नॉट इन योर होम सराउंडिंग्स, आप लोगों ने कहीं आते जाते भी आपने नोट किया होगा कि कई बार पानी जो है ओवरफ्लो कर रहा होता है इन ड्रेन्स के बाहर, हमारे घर के बाहर भी हो सकता है, तो वहां से बड़ी गंदी या फाउल स्मेल आ रही होती है। और अगर अगर आपने देखा भी है तो आपने नोट किया होगा कि वो जो पानी है उसका कलर भी बड़ा गंदा सा होता है, डर्टी ब्लैक ग्रेश एंड थोड़ा सेमी सॉलिड सा होता है कि नहीं? वी डोंट टेंड टू लुक एट इट, हमें देखने को मन नहीं करता है, गंदी स्मेल आ रही होती है, हम उससे बच के निकलते हैं। तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? सीवेज की कॉम्पोजिशन क्या है? सीवेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बुक इटसेल्फ, व्हाट एट ऑल इज प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर जिसमें कि वाटर डिसॉल्व्ड है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ सैप्रोट्रोफ्स हैं। सैप्रोट्रोफ्स इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया था, सैप्रोट्रोफ्स आर heterotrophic organisms which cannot prepare their own food and depend upon dead and decaying matter, ठीक है? dead and they derive their food from dead and decaying matter। तो सैप्रोट्रोफिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी उसमें हो सकते हैं, बहुत सारे अदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जैसे, जिसके बारे में हमने उस दिन मलेरिया डे पे डिस्कस किया था, राइट? तो वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है? ऑर्गेनिक मतलब जो कि नेचर से डिराइव्ड है, जैसे ह्यूमन फीसेस हो गए, एंड एनिमल वेस्ट हो गया, जैसे एनिमल डंग हो गया, यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो गया, ऑयल हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल वेस्ट हो सकते हैं, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मतलब दोज which are not derived from living beings। तो वो हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। देन न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। then there may be bacteria present in sewage which includes those bacteria जो कि waterborne diseases cause करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कॉलेरा, टाइफाइड, तो वैसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत सारे अदर माइक्रोब भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, जो कि एक डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्री, जैसे लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं दे कैन बी प्रेजेंट इन द सीवेज। एंड इन एडिशन टू दिस जो सीवेज है, जब वो सीवेज ट्रीटमेंट टाइम में पहुंचता है ना,
So it may contain कुछ बोरियां, rags, wooden sticks, cans, plastic bags. Polythene bags तो बहुत ही common है. Polythene bags के कारण ही तो बेटा सीवेज ब्लॉक हो जाते हैं. Napkins, sanitary towels, कुछ stone के pieces, stand, which somehow get into this sewers, है ना. तो अब next आता है कि how is this getting into the system. तो हाउस में या फिर पब्लिक बिल्डिंग में जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप्स. ठीक है. वन सेट ऑफ पाइप्स जो होते हैं दे ब्रिंग अबाउट, अगर आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ सीवरेज सिस्टम होता है दैट इज अंडरग्राउंड. ठीक है, हम लोगों ने देखा नहीं है बट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग समहाउ यू माइट हैव सीन कुछ ऐसा होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि हाउस में देयर इज अ या बिल्डिंग में से जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप्स. वन टाइप ऑफ पाइप्स जो है वो क्लीन वाटर लेकर जा रहा है एंड दूसरे सेट ऑफ पाइप्स जो हैं दे आर ब्रिंगिंग द वेस्ट वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द हाउस. क्लीन वाटर जो है वो पतले होते हैं, पाइप्स नैरो होते हैं, जबकि वेस्ट वाटर वाले जो पाइप्स होते हैं और जो ड्रेन्स होते हैं देर यूजुअली काफी वाइड होते हैं. तो पाइप्स विच कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स वो अंदर दे आर पुट डीप इनसाइड द ग्राउंड. अगर आप घर में अपने नोट करेंगे तो वहां पर भी बड़े बड़े से ऐसे गोल गोल से ढक्कन होते हैं, आयरन के ढक्कन या फिर सीमेंट के ढक्कन होते हैं और उनके नीचे बड़े बड़े से ड्रेन्स बने हुए हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था. तो ये तो हमारे ऐसे ड्रेन्स तो हमें रोड्स में नजर आते हैं, पर कुछ ऐसे ही लेकिन छोटे ड्रेन्स हमारे घरों में भी अंडर दैट, जब मैं आपको बात कर रही हूँ कि हमारे घरों में जहाँ आपको ये दिखाई देते हैं ना ऐसे ढक्कन ड्रेन्स वाले, उनके नीचे कुछ ऐसा ही सिस्टम है. तो वो पाइप्स अलग अलग आ रही है, पानी उनमें अलग अलग प्लेसेस से, हमारे वॉशरूम से, किचन से, सब जगह से आ रहा है. तो अब ये जो आ रहा है सारा का सारा थ्रू पाइप्स. तो अंडरग्राउंड पाइप जो कैरी करता है डर्टी ड्रेनेज वाटर एंड वेस्ट मैटर, इसको कहते हैं हम सीवर. ये जो पाइप्स है ना इनको हम कहते हैं सीवर, जो कि ये गंदा पानी लेकर आ रहे हैं. ठीक है. तो ये ड्रेनेज जो है एट अ प्लेस, provision of drainage at a place by laying sewers under the ground, उसको कहते हैं सीवरेज. तो ये बहुत सारे सीवर्स जो होते हैं ना, ये लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कैरी सीवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ बीइंग, वहां जहां वो प्रोड्यूस हो रहा है, टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल जहां ट्रीटमेंट प्लांट जा रहा है. और ये मैन होल्स जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, दे आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज. और जो जंक्शन होता है ना जहां पर दो या दो से ज्यादा सीवर्स होते हैं एट द पॉइंट, वहां पर उनको चेंज डायरेक्शन भी चेंज करने को मिल जाती है. मतलब हमारे जो अंडर द ग्राउंड अगर हमें देखने को मिलता है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के वक्त देखा है तो देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल इंटरकनेक्टेड पाइप्स जिनको हम सीवेज कहते हैं. और सीवरेज जो है वो अंडरग्राउंड पाइप्स का एक नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड है एंड दैट कैरीज द सीवेज फ्रॉम अ प्लेस, जैसे घरों में या बिल्डिंग्स में, टू हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां उसको प्रोसेस किया जाएगा. और मैन होल्स तो आपने अलग अलग घर में भी देखे हैं और बाहर भी देखे हैं. ये जो सीवेज होता है दैट इज वेरी हार्मफुल टू पीपल एंड द एनवायरमेंट. ठीक है. इट इज रिलीज्ड, कहाँ से रिलीज हो रहा है? हाउसेज से, बिल्डिंग से. और लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत डिजीज कॉज कर सकते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम ऐसा जो पानी है अगर हम उठा के इसको डाल देंगे अपना रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड्स में, सब में डाल देंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. हमारे लिए वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग भी नहीं रहेगा. तो इसका मतलब हुआ कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर which is contaminated with sewage, which can spread diseases and can lead to death. तो ऐसा जो discharge of untreated sewage into the water can also kill aquatic animals. So the next thing is that we should treat this before discharging into the water bodies. तो ये कैसे होता है? Processing of sewage to remove pollutants and make it let's say harmless
and then it should be disposed into the safely into the rivers or other water bodies. तो ये कहाँ पर होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में या वेस्ट वाटर प्लांट में. तो मेन पर्पस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन इट सो एज टू मेक इट टू अ लोअर लेवल सो दैट इट मे नॉट अफेक्ट और become a health hazard for anyone, let it be for animals or even human beings. अब ऐसा ही एक waste treatment plant, I'll be showing you the activity. In this model, let us learn about sewerage and treatment of polluted water. First, let us discuss about sewerage. The provision of ये वाला देखिए बेटा, ये जो सीवेज है, ये दिस वी आई एम टॉकिंग अबाउट, आपने कई बार आपने नोट किया होगा. सो दिस इज द सीवेज और ट्रीटमेंट प्लांट. ये घरों में अलग अलग पाइप्स होते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स, जो हम लोगों को देखते नहीं है. इट इज कैरिंग फ्रॉम होम्स, ठीक है, टू द प्लेसेस वेयर इट इज कमिंग. यहाँ पर ये जॉइंट एक दिखाया हुआ है जहाँ पर दो अलग अलग जगह से सीवेज जो है इट इज कमिंग. एंड ऐसे ये अंडरग्राउंड अंडर द अर्थ इट इज समवॉट लाइक दिस. आप इमेजिन कीजिए बिग ड्रेन्स जहां पर की गंदा पानी जो है वो कैरी हो रहा है. और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. ये देखिए, दिस इज अ मैन होल. ये हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है नॉर्मली. इसके थ्रू भी रेन वाटर जाता है. एंड ये एक जंक्शन है जहां पर की अलग अलग जगह से पानी जो आ रहा है दैट इज फॉलिंग इनटू हियर. ऑलराइट, सो नाउ वी कम टू हाउ टू purify this polluted water. How to purify this polluted water? Okay, this is an activity given. What we are doing is we are taking a large glass jar और उसको हमने 3/4 full of water कर लिया. उसमें हमने कुछ organic matter जैसे dirty grass pieces डाल दिए, orange peels डाल दिए, small amount of detergent, few drops of ink or any other color. ठीक है. एंड अब इसके ऊपर हमने ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दी और उसके बाद में हमने उसको ढक्कन लगा दिया और उसको शेक किया. एंड वी लीव इट फॉर 2 days इन सन. ठीक है. आफ्टर 2 days व्हाट हैपेंस, शेक द मिक्सचर एंड इसमें से थोड़ा सा सैंपल निकालना है. हमने थोड़ा सा अमाउंट का निकालना है एंड वील पुट इट इनटू अ टेस्ट ट्यूब. और इसको हमने सैंपल 1 कह दिया. वील कॉल दिस एज सैंपल 1. ठीक है. इसकी स्मेल नोट करनी है. हाउ डज इट स्मेल? It will obviously smell very bad. ठीक है. अब you will use an aerator. ठीक है. We'll use an aerator. throw the sample in the glass jar. Allow an overnight aeration. यहाँ पर aeration कर रहे हैं हम. ठीक है. We'll aeration मतलब we are passing air through the sample. हमने वापस जो गैस जार था उसमें हमने एयर पास की एंड बहुत घंटों के लिए, मे बी ओवरनाइट. एंड मतलब अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो आप उसको हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं. सो दैट यू स्टर इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो उससे एयर उसमें पास हो जाएगी. तो जब नेक्स्ट डे एरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने उसमें से एक और सैंपल लेना है और उसको आपने मार्क कर देना है एज सैंपल 2 आफ्टर एरेशन. सो